ایک ایسی موومنٹ جو کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھی اور اس نے دنیا کی تمام بڑی قوتوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. ایک ایسی تحریک جس کو ایک مدرسے کے استاد نے شروع کیا اور اس تحریک نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی. تو آخر کیسے 1994 میں شروع ہونے والی یہ تحریک دنیا کے لیے ایک خطرہ ثابت ہوئی. اس تحریک نے نہ صرف اپنے ملک کا نقشہ بدلا بلکہ دنیا کی پالیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا. کیا واقعی ہی طالبان ایک انصاف کا نظام لائے تھے یا پھر یہ ایک اور بڑی طاقت تھی جس نے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے؟ یہ ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو کہ 1978 کی رشین انویژن سے لے کر 2021 کے کابل ٹیک اوور تک بالکل واضح ہے. 1978 افغانستان کے اندر ایک ریولوشن آئی جس کے اندر پی ڈی پی اے یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان پاور میں آئی. پی ڈی پی اے ایک سوویت بیکڈ پارٹی تھی اور اس نے افغانستان کے اندر سوشلسٹ اور سیکولر پالیسیز کو لاگو کرنا شروع کر دیا. اب افغانستان ایک کنزرویٹو ملک تھا اور یہ پالیسیز وہاں کے لوگوں کے ریلیجیس اور ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ میچ نہیں ہوئی. اسی وجہ سے افغانستان کے مختلف ٹرائبل اور ریلیجیس گروپس اس حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے اور مجاہدین کے نام سے دنیا کے سامنے ایک ملیٹنٹ گروپ سامنے آیا. تو آخر کون تھے یہ مجاہدین اور آخر کون سے ریلیجیس اور ٹرائبل گروپس اس کے اندر شامل ہوئے؟ دیکھیں، مجاہدین ایک ملیٹنٹ گروپ تھا جس کا مقصد پی ڈی پی اے کی حکومت کو گرانا تھا جو کہ افغانستان کے اندر سوویت انفلوئنس کو بڑھاوا دے رہی تھی. سب سے پہلا گروپ ایسٹرن افغانستان کے علاقے جس میں کابل، کونار اور جلال آباد شامل ہیں حزب اسلامی کے نام سے وجود میں آیا. اس گروپ کا لیڈر تھا غلاب الدین حکمت یار اور اس گروپ کے اندر پشتون ٹرائبز کے میکسیمم لوگ شامل ہوئے. اس کے علاوہ نارتھ افغانستان کے علاقے جس میں بدخشان، پنجشیر ویلی اور ٹکھر کے علاقے شامل ہیں وہاں جمعیت اسلامی کے نام سے ایک گروپ وجود میں آیا. اس گروپ کا لیڈر تھا احمد شاہ مسعود اور اس گروپ کے اندر تاجک ٹرائبز کے لوگ سب سے زیادہ شامل ہوئے. اس کے علاوہ کابل، پروان اور کیپیسا کے علاقوں میں ایک اور گروپ وجود میں آیا جس کا نام تھا اتحاد اسلامی. اس کے علاوہ افغانستان کے صدرن ایریاز جس میں قندھار، ہلمانڈ اور ارزگان شامل تھے یہاں پر حرکت انقلاب اسلامی کے نام سے ایک اور مجاہدین گروپ وجود میں آیا. اگر بات کریں سینٹرل افغانستان کی تو وہاں پر ہزارہ جات کے علاقوں میں حرکت اسلامی کے نام سے ایک اور گروپ وجود میں آیا. اس کے علاوہ ویسٹرن افغانستان کے اندر NIFA یعنی نیشنل اسلامک فرنٹ آف افغانستان اینڈ ANLF یعنی افغانستان نیشنل لبریشن فرنٹ وجود میں آئی. ان تمام گروپس کے علاوہ اور بھی کئی چھوٹے چھوٹے گروپس تھے جو کہ سوویت بیکڈ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہوئے. جب سوویت کو مجاہدین کی اس موومنٹ کا پتہ چلا تو انہوں نے 1979 میں افغانستان کے اندر اپنے ٹروپس بھیج دیے تاکہ مجاہدین کو روک کر پی ڈی پی اے کی حکومت کو سٹیبلائز کیا جا سکے. مجاہدین اور سوویت کے درمیان یہ جنگ تقریباً 10 سال تک چلی اور 1989 میں آخر سوویت نے اپنے ٹروپس افغانستان سے واپس بلا دی. اس جنگ کے اندر 15,000 سوویت سولجرز اور لاکھوں افغانستانی سویلینز اور مجاہدین مارے گئے. لیکن دوستو یہاں پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے اور وہ یہ ہے کہ سوویت اس وقت کی ایک بڑی سپر پاور تھی. سوویت کے سولجرز ویل ٹرینڈ تھے اور ان کے پاس جدید اسلحہ تھا. تو آخر کیسے ایک ویل ٹرینڈ آرمی مجاہدین کے خلاف 10 سال تک لڑتی رہی اور پھر بھی انہیں کامیابی نہ ملی؟ دوستو اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں جس میں سب سے پہلی ہے افغانستان کی جیوگرافی اور مجاہدین کی گوریلا وارفیئر ٹیکٹک. دیکھیں افغانستان کے پیچیدہ اور پہاڑی علاقے سوویت آرمی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوئے. سوویت کے ٹینکس اور ان کے آرمڈ وہیکلز افغانستان کی تنگ وادیوں میں کسی بھی کام کے نہیں تھے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگ آمنے سامنے نہیں لڑی گئی اور مجاہدین نے گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس کو استعمال کیا. مجاہدین چھپ کر سوویت فورسز کے اوپر حملہ کرتے تھے اور اس سے پہلے کہ سوویت فورسز اٹیک کا جواب دینے کے لیے کوئی پلاننگ کریں مجاہدین وہاں سے غائب ہو جاتے تھے. یہ مجاہدین چھوٹی چھوٹی ٹیمز میں کام کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ جلدی اور آسانی سے چھپ جاتے تھے. اس کے علاوہ افغان مجاہدین افغانستان کے پہاڑوں، غاروں اور وادیوں سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ اپنے کیمپس ایسے پہاڑوں اور غاروں میں بناتے تھے جہاں پر سوویت فورسز کا آنا مشکل ہو. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی کوئی فکس لوکیشن نہیں تھی بلکہ یہ اپنی لوکیشن کو بار بار چینج کرتے رہتے تھے. اس کے علاوہ ایسے بریجز جو کہ سوویت آرمی استعمال کرتی تھی مجاہدین اس کو دھماکوں سے اڑا دیتے تھے جس کی وجہ سے سوویت آرمی کی سپیڈ سلو ہو جاتی اور ان کی سپلائی چین کے اوپر برا اثر پڑتا. اس کے علاوہ مجاہدین کے جیتنے کی دوسری بڑی وجہ ہے لوکل اینڈ انٹرنیشنل سپورٹ. اگر بات کریں امریکہ کی تو امریکہ نے ایک بڑے لیول کے اوپر مجاہدین کو ملٹری اور فائنینشل سپورٹ دی. امریکہ کا سٹنگر میزائل مجاہدین کے لیے کافی کرامت ثابت ہوا اور مجاہدین نے اس سٹنگر میزائل سے سوویت کے کئی ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا. اس کے علاوہ ISI نے مجاہدین کو لاجسٹکس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی
प्रोवाइड की। इसके अलावा सऊदी अरब और बाकी अरब कंट्रीज ने अफगान मुजाहिदीन को बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट दी। बात करें लोकल लेवल की तो लोकल लेवल पर भी मुजाहिदीन को अच्छी खासी हिमायत हासिल थी और लोग इन्हें खाना, शेल्टर और खुफिया मालूमात प्रोवाइड करते थे। मुख्तसर ये कि सोवियत आर्मी एक कन्वेंशनल आर्मी थी और इनकी ट्रेनिंग एक बड़े स्केल की बैटल फील्ड के लिए हुई थी और ना ही इन्हें गोरिल्ला टैक्टिक्स के खिलाफ लड़ने का कोई एक्सपीरियंस था जैसा कि मुजाहिदीन ने किया। तो बेसिकली इन्हीं वजूहात की वजह से 1989 में सोवियत ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। मुजाहिदीन के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। मुजाहिदीन की इस जीत के बाद खुद मुजाहिदीन के अंदर ही पावर स्ट्रगल के लिए एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू हो गई। कत्ल गारत आम हो गई और लोगों ने जिन मुजाहिदीन से ये तवक्का की थी कि वो इस्लाम का निजाम लाएंगे, उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर सिविल वार शुरू कर दी। इसी सिविल वार के दौरान 1994 के अंदर एक मदरसे का उस्ताद जिसका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर, वो खड़ा होता है और एक और मिलिटेंट ग्रुप बनाता है जिसका नाम था तालिबान। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि तालिबान को और मुजाहिदीन को एक ही ग्रुप समझ रहे थे, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत हैं। मुजाहिदीन वो ग्रुप है जिसने 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत आर्मी के खिलाफ जंग की, जबकि तालिबान की शुरुआत 1994 में यानी सोवियत के जाने के 5 साल बाद हुई, जब अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन ने सिविल वार शुरू की। अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन है ये तालिबान और आखिर क्यों अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन की और आखिर कैसे एक लंबी जंग के बाद तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाया। देखिए, जब मुजाहिदीन की आपस में सिविल वार बढ़ने लगी तो मुल्ला उमर उसने कुछ मदरसे के स्टूडेंट्स को अपने साथ मिलाकर एक नया मिलिटेंट ग्रुप बनाया। क्योंकि इस ग्रुप के अंदर ज्यादातर लोग मदरसे के तालिब इल्म थे, तो इसलिए इस ग्रुप का नाम तालिबान रखा गया। इस ग्रुप के अंदर कंधार और उसके आसपास के मदारिस के तलबा और पाकिस्तानी मदारिस के अफगान तलबा भी इस ग्रुप के अंदर शामिल हुए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पाकिस्तानी मदारिस के अफगान तलबा कैसे? देखिए, जब सोवियत ने अफगानिस्तान के अंदर इन्वेजन की थी तो आम लोगों की जिंदगी के ऊपर इसका बहुत बुरा असर हुआ। मुजाहिदीन और सोवियत की आपस की जंग में वहाँ के कई सिविलियंस मारे गए। तो बेसिकली इसी जुल्म से बचने के लिए कई अफगान सिविलियंस पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में आकर एज अ रेफ्यूजी रहने लगे। अब क्योंकि पाकिस्तानी मदारिस के अंदर तालीम मुफ्त थी, तो ये बच्चे स्कूल जाने की बजाय मदारिस के अंदर इस्लामी तालीम हासिल करने लगे। तो जब मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का ग्रुप बनाया तो पाकिस्तानी मदारिस के कई अफगान तलबा इस ग्रुप के अंदर शामिल हुए। तालिबान ने अपने पहले ही साल यानी 1994 में मुजाहिदीन को हराकर कंधार का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। कंधार पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने लोगों से अमन और स्टेबिलिटी का वादा किया। 1996 में तालिबान ने अहमद शाह मसूद और बुरहानुद्दीन रब्बानी, जो कि जमीयत इस्लामी की लीडरशिप के लिए आपस में लड़ रहे थे, इन दोनों को हराकर काबुल का कंट्रोल संभाल लिया। जैसे ही तालिबान ने काबुल को फतह किया तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा झोल है। देखिए, मुजाहिदीन जो कि सोवियत के साथ तकरीबन 10 साल तक लड़े और एंड में सोवियत को 10 साल के बाद अफगानिस्तान से भगा दिया। इसके अलावा मुजाहिदीन को अमेरिका, ISI और बाकी अरब वर्ल्ड की भी हिमायत हासिल थी। तो फिर आखिर कैसे तालिबान ने, जिसके अंदर मदारिस के तुलबा शामिल थे, मुजाहिदीन को 4 साल के अंदर हरा दिया? देखें दोस्तों, इसके पीछे बहुत सी दिलचस्प वजूहात हैं, जिसमें से पहली वजह है पब्लिक सपोर्ट। देखिए, 1989 में सोवियत को अफगानिस्तान से भगाने के बाद बजाय इसके कि मुजाहिदीन मिलकर अफगानिस्तान को चलाते, इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। इनकी आपस की जंग ने अफगानिस्तान को मजीद इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल दिया। और अगर बात करें लोगों की, तो लोग इनकी आपस की जंग से पक चुके थे। तो जब ऐसी सूरत हाल में मुल्ला उमर ने स्टेबिलिटी और अमन का लोगों से वादा किया, तो लोगों ने मुल्ला उमर यानी तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में तालिबान ने करप्ट और जालिम लीडर्स के खिलाफ कार्रवाइयां की, जिनसे उनको पब्लिक सपोर्ट मिली। और इसके पीछे दूसरी वजह है यूनिटी एंड अलायंस विद सम मुजाहिदीन। देखिए, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क और भी छोटे छोटे मुजाहिदीन ग्रुप्स को मुल्ला उमर ने तालिबान में शामिल कर लिया। जहां मुजाहिदीन अलग अलग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, वहां पर तालिबान ने मिलकर इनको एक एक करके हराया। और इसकी तीसरी वजह है इंटरनेशनल सपोर्ट। जब अमेरिका, पाकिस्तान और अरब वर्ल्ड ने मुजाहिदीन का ये रवैया देखा कि वो पावर के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इन्होंने मुजाहिदीन की बजाय तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि तालिबान ने स्टेबिलिटी और अमन का वादा किया।
सो बेसिकली यूनिटी, मुजाहिदीन ग्रुप्स के साथ अलायंस और इसके अलावा पब्लिक और इंटरनेशनल सपोर्ट से तालिबान ने मुजाहिदीन को हरा दी। लेकिन दोस्तों, जिस तेजी के साथ तालिबान ने मुजाहिदीन को हराकर हुकूमत संभाली, उसी तेजी के साथ तालिबान को हुकूमत छोड़नी पड़ी। अल-कायदा के अमीर उसामा बिन लादेन ने 9 सितंबर को अमेरिका के 4 एयरप्लेन्स हाईजैक करके उनको सुसाइड अटैक के लिए इस्तेमाल किया। इस अटैक के अंदर तकरीबन 3000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनका ताल्लुक 90 प्लस कंट्रीज से था। याद रहे कि अल-कायदा और तालिबान दो अलग अलग ग्रुप्स हैं और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इस पर बात भी करेंगे। तो बेसिकली 9/11 के इस वाक़ये के बाद उसामा बिन लादेन ने पनाह ली अफगानिस्तान में। जब यूएसए और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने तालिबान के ऊपर प्रेशर डाला कि वो उसामा को उनके हवाले करें, तो वहां पर तालिबान ने साफ मना कर दिया। तालिबान ने कहा कि उसामा बिन लादेन हमारा मुसलमान भाई है और हमारा मेहमान है, तो हम इसे आपके हवाले नहीं कर सकते। सो बेसिकली 7 अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने वार ऑन टेरर का आगाज किया। ये मिलिट्री ऑपरेशन यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नेटो के बाकी अलायंस ने मिलकर तालिबान के खिलाफ किया। 1 साल के अंदर ही अमेरिका ने तालिबान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके रख दिया। तालिबान की सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई और तालिबान को मेजर सिटीज छोड़कर रूरल एरियाज की तरफ भागना पड़ा। इस ऑपरेशन के बाद तालिबान के कुछ ग्रुप्स ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में पनाह ली और कुछ अफगान तालिबान अफगानिस्तान के रूरल एरियाज में छुप गए। और दूसरी तरफ 2001 में ही अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर हामिद करजई को अफगानिस्तान का इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया। 2001 में किए जाने वाले इस ऑपरेशन की वजह से तालिबान छुप तो गए, लेकिन दोस्तों 2004 में अफगान तालिबान ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया और सदरन अफगानिस्तान के ऊपर अपने अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए। तालिबान ने गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स को यूएसए के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मुजाहिदीन ने 1978 के अंदर सोवियत फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया। 2009 और 2012 के दौरान भी नेटो और यूएसए के ट्रूप्स ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशंस किए, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में मजबूत रहे। 2014 तक अमेरिका ने अपने कॉम्बैट ऑपरेशंस फॉर्मली खत्म किए और अफगानिस्तान की आर्मी को सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। और दूसरी तरफ बात करें तालिबान की, तो तालिबान ने अपने मिलिट्री कैंप्स को और ज्यादा मजबूत किया। 2015 और 2019 के दरमियान अफगान तालिबान ने अपनी टेरिटरी पर कब्जा वापस लेना शुरू किया और अफगानिस्तान के मेजर रीजन्स पर अटैक्स इंटेंसिफाई कर दिए। और इन तमाम चीजों के बाद यूएसए ने अपनी लॉन्ग टर्म वार को खत्म करने का फैसला किया। 2020 में कतर के दोहा में तालिबान और यूएसए के दरमियान फाइनल नेगोशिएशंस हुई। फैसला ये हुआ कि यूएसए अपने ट्रूप्स को वापस बुलाएगा और अफगानिस्तान अपनी जमीन को टेररिस्ट एक्टिविटीज से बचाएगा। अगस्त 2021 में यूएसए के विड्रॉल के बाद अफगान नेशनल आर्मी कोलैप्स हो गई और गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर बहुत वीक पड़ गई। और आखिर 15 अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल के ऊपर बगैर किसी रेजिस्टेंस के कब्जा कर लिया। अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी मुल्क को छोड़कर भाग गए और इस तरह से तालिबान ने 20 साल के बाद अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की।